سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، چلیں گے جرمنی۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے، جس طرح ہم نے اپنے پہلے پروگرام بتایا تھا۔ یہاں پہ جو غیر ملکی آئے ہوئے ہیں اس پر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ شام کے صدر یہاں آئے ہوئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب، کیا تفصیل ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، شام کے صدر آج کل جرمنی، کل منڈے کے دن جرمنی میں تھے جی، اور ان کو اس قسم کی تنقید ہوئی ہے پریس کی طرف سے ان کی ذات کے اوپر، ان کے بارے میں، اسے یہ ناراض لگتا ہے کہ یہ ان کو جرمن حکومت نے بنایا تھا اور جس کی شدید مخالفت کی گئی ہے پریس کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دہشت گرد کو سرکاری مہمان کیوں بنایا گیا۔ جہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ماضی کے اندر دہشت گرد تھا، جس نے بعض دہشت گرد تنظیموں کے نام لکھے ہیں جن کے ساتھ وہ منسلک رہا، اور اس کو کیوں ایک سرکاری مہمان جرمنی میں بنایا گیا۔ اور جو ہمارا سب سے مشہور اخبار ہے اسے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی کنٹروورشل اسٹیٹ وزٹ آف دا ایئر ہے اس کا یہاں جرمنی میں جو آنا ہے۔ تو بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی شریعت کی بات کرنے والا آج جرمنی کے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اور جبکہ اس کے لوگ جو اس کے ساتھی تھے وہ آج بھی وہاں پر کیمپوں کے اندر زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس نے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر جو اس کے حامی ہیں یا شام کے حامی ہیں حکومت کے، انہوں نے جو نعرے بازی کیا اس کے اندر اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں بہت زیادہ بلند کیے گئے۔ تو اس پر بھی بہت سے اخبارات نے تنقید کی ہے کہ بھائی ہماری جرمنی کی فضا کو جو ہے یہ ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سیاسی کلچر سے کے خلاف ہیں کہ بھائی ہمارا جو اپنا جرمن کلچر ہے سیاست کا اور ثقافت کا، وہ اس کی فضا جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ یہاں آ کے اپنی اسی شریعت کی بات کرتے ہیں اور اللہ اکبر کنارے وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، اپنی مسجدوں میں ضرور لگائیں لیکن سڑکوں کو اوپر یا جرمن کی فضا میں اس طرح سیاسی جلسوں کے اندر اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے۔ جرمن حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے کوشش ہے کہ بھائی یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ 2011 سے 1 ملین لوگ جو برگر قریب ہوئی تھی جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہ خانہ جنگی، اس میں جو ہمدردی جرمن گورنمنٹ نے دکھائی تھی اس کے اندر وہ ایک قسم کی ہمدردی کا اسٹیپ تھا کہ بھائی آپ کو پناہ دیتے ہیں، دی گئی تھی کہ آپ جنگ کے حالات سے بچیں، اور اس میں یہ بات شامل تھی، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ اسائلم اپلائی کریں، آپ کو اسپیشل ویزا دے دیتے ہیں جی۔ تو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ویزے کی کنڈیشن جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی، تو ان سے کہا گیا تھا کہ تو اپنے ملکوں کو واپس جائے۔ اب یہ ہے کہ 7 لاکھ بندے نے یہاں پر اسائلم دے دیا ہوا ہے جرمنی کی، اور جو نوجوان ہیں ان کے سیریا کے وہ واپس جانا نہیں چاہتے۔ اس میں کافی انہوں نے انٹرویو دکھائے ہیں جس کے اندر نوجوانوں نے کہا کہ نہیں ہم نے واپس نہیں جانا، ہم یہاں پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم یہاں پر اپنی جابس وغیرہ پر لگے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تو وہ جرمن شاسن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی بنانا چاہتے ہیں کہ 3 سال کے اندر اندر تمام سیرین جو یہاں رہ رہے ہیں وہ یا ان کی بڑی ایکسپیرینس جو ہے وہ واپس اپنے ملکوں کو چلی جائے۔ اس کے لیے ایک پہلا ڈیلیگیشن ان کا آیا ہے، اب ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ جرمنی سے وہاں جائے گا اور یہ معاملات طے کرے گا، اور ممکن ہے کہ بھائی جرمن کو بڑی امداد دے دیں ان کو حکومت کو، تو جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ یہ اسٹیپ اٹھایا جائے گا، نہ کہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ۔ یہ تو آخری حکومت ہے، پارلیمان انتخابات کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ بھائی جس سے یہ سیزن جو ہے، کیونکہ یہاں کی فضا ایسی بن چکی ہے جرمنی میں کہ یہ ایک مستقل نعرہ بن گیا ہے، تمام جو سیاسی پارٹیاں جو مخالف ہیں غیر ملکوں کی وہ سیزن کو واپس بھیجنا چاہتی ہیں، اور روز ان کا ذکر جو ہے اس معنوں میں آتا ہے، جس میں سویڈن کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ سویڈن نے بڑی سخت پالیسی رکھی ہے سیرینز کے ساتھ، اور
नौजवान जो 18 साल का जो पहुंचता 18 साल का उसको उठा के वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो जो माँ बाप से उनको अलग कर रहे हैं बच्चों को, जो जिनके फैमिली से ऐसी तादाद लिखी हुई थी उसके अंदर आर्टिकल में, तो जिसमें मिस्र के चंद फैमिलीज थी और ये शाम के लोग हैं जिनको जबरदस्ती जो है वापस भिजवाया जा रहा है, और उसके लिए उन्होंने अपनी कानून साजी भी कर ली है। जर्मन में ऐसी कानून साजी नहीं चाहता। जर्मन ने कहा कि हम चाहते हैं कभी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कुछ आपस में हम एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंच जाए कि हम इन लोगों को वहां पे अपने घरों में सेटल करने के लिए अभी जो लोग जा रहे हैं उनको एक बड़ी रकम इमदाद के तौर पर दे रहे हैं, और ये एक मुस्तकिल चैनल बन जाए, और उसके तहत फिर उनको वहां पर जाने वालों को भी वहां ना कुछ कहा जाए और उनको वहां सेटलमेंट होने में एक इमदाद जो है वो हुकूमत दे दे। तो इसलिए इस वेट को रखा गया था जो शदीद तनकीद का निशाना बना हुआ है इस वक्त जनवरा पर। जी मतलब एक नस्ल जो है आपने देखा जवान होगी, कैसे ये अब ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल फैसला होता है 2011 से अब 2026 चल रहा है, जो छोटे बच्चे हैं 20 22 24 साल के हो गए, कईयों के फिर उनके भी बच्चे हो गए, तो आप समझते हैं कि बड़ा आसान है ये जो कोई भी मुआहदा करेंगे और अपने आप ये लोग चले जाएंगे, ये जबरदस्ती करना पड़ेगा? लेकिन जो बंदा यहाँ काम कर रहा होगा ना उसको जर्मन हुकूमत नहीं छोड़ेगी। इनको खुद लोगों की जरूरत है। जो लोग बेकार हैं, जो फारिग फिर के क्राइम की तरफ जिनका रुझान हो जाता है फारिग करने की वजह से, उनको ये निकालना चाहते हैं। अब ये जर्मनी के कल्चर के अंदर जो चाकू का हमले करने का अंसर शामिल हो गया ना, इससे जर्मन काफी परेशान है। तो बहरहाल ये लड़ाई झगड़ा जो है ये हमारे अरब कल्चर में ज्यादा है, जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देना। और अब अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई झगड़े जो है लड़ाई इनके आपस में खानदानों में लड़ाइयाँ भी होती है। अभी 2-3 दिन पहले एक था कि 2-3 बंदों ने आपस में खानदान के लोगों की लड़ाई हुई है, मार दिया गया। तो इस कल्चर से बचने के लिए जिससे जर्मन का कल्चर मुतासर हो रहा है, वो ऐसा चाहते हैं कि भाई जो लोग बेकार रहना चाहते हैं, जो यहाँ काम नहीं करना चाहते, वो बोझ बन के रहना चाहते हैं और माशरे को खराब करना चाहते हैं, उनको वो वापस भिजवा दें। लेकिन अगर इन्होंने सबको भिजवाना होता तो ये भी स्वीडन की तरफ कानून साजी कर देते, कोई सख्त कानून ऐसा बना देते और पकड़ के चढ़ाना शुरू कर देते। लेकिन इस तरह से नहीं आए, बल्कि सियासी तौर पर हुकूमत को बुला के उनके साथ कोई ना कोई मुआहदा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हाथ अपना नरम रखना चाहते हैं कि दोनों तरफ की जरूरत जो है वो पूरी हो जाए। जो लोग यहाँ बेकार हैं, इनके ऊपर बोझ है, वो अपने घरों को चले जाए, और जो जहाँ काम कर रहा है, जो अपनी रोजी खुद कमा रहा है, उसको निकालने में कोई इनको वो नहीं होगी। आप भी देख लें कि सीरियन के अंदर एक खूबी ये है कि इस वक्त जर्मनी के अंदर जितने भी अरब ममालिक में से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो सीरियन की है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी तादाद सीरियन की है, मगर क्राइम में भी काफी इनका नाम रोशन हुआ है खान साहब। हाँ, मैं तो नौजवान इनका यकीन नौजवान इनका बहुत बेड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं आपका। अच्छा खान साहब, यहाँ पे एक अगर इंटरनेशनल हालात पे नजर डालें, फर्ज करें जो हालात जंग के बने हुए हैं, अगर ये जंग नहीं रुकती तो ये जंग फैलती जा रही है, और जो इसराइल का प्रोग्राम है, अगर ये जंग दमिश्क में दोबारा पहुंच गई तो फिर ये मामला वहीं रुक जाएंगे। लेकिन दमिश्क तक जंग तो नहीं जाती, जंग तो ज्यादातर उनका मेन मकसद तो इस जंग का इसराइल का और अमेरिका का ईरान को कमजोर करना है। और उसमें वो अगर कामयाब हो भी जाए तो जो जिन ममालिक में सीरिया हो गया, इराक हो गया, इनमें इन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवा लेनी है, फिर ये अपने आप को सेफ सफर करेंगे, वहां पे ऐसी कैसी तादाद होगी। यहाँ पे भारी तादाद में 2 लाख के करीब ऐसे सीरियन भी हैं जो जर्मन नेशनल है, उनको तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जा भी नहीं सकते वापस। उनको ख्याल मैं कहता हूँ जो लोग आप भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं, माशरे का हिस्सा बन रहे हैं, माशरे में गबादमनी पैदा नहीं कर रहे हैं, उनको कोई नहीं छेड़ेगा यहाँ पर। हाँ सर, मजमूई तौर पे क्या हालात है, गैर मुल्की की जो सख्ती की गई है यहाँ पे और लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी चल रहा है, कई ऐसे
लोगों को वापस भेजा जाना था, लेकिन ये जंग की वजह से रास्ते बंद हो गए और वो डिले हो गया काम। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि उसी लेकिन अमली तौर पर अभी तक कोई ऐसा इकदाम इन्होंने नहीं उठाया जिसके अंदर जबरदस्ती शामिल हो, सिवाय इसके कि भाई जो लोग जिनके केस खत्म हो गए, जिनका यहाँ लीगल राइट खत्म हो गया, वो नहीं जा रहे यहाँ से, उनको निकालने के लिए यकीनन पुलिस या जो इमिग्रेशन का महकमा है वो फाल है। लेकिन कोई ऐसे कानून साजी अभी तक नहीं की। हालांकि आप देख लें 3 सूबों में इलेक्शन हुए और तीनों सूबों के अंदर उन पार्टीज को ज्यादा वोट मिले हैं जो इस हुकूमत को मतलब गैर मुल्कों को मुल्क से बाहर निकालने की बात करते हैं, जिनका मोटो यही है कि भाई हमें गैर मुल्कों को यहाँ से रुखसत करना है। उनको लोग ज्यादा वोट दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ऐसा हुकूमती इक़दाम या कानून साजी की तरफ हुकूमत नहीं आई जिसमें कोई जबरदस्ती का अंसर जो है वो शामिल हो। आखिर में ये बताइए, एक लेटर पिछले दिनों जारी हुआ बर्लिन की तरफ से, पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से, जिन लोगों ने जिस तरह हम लोग हैं एक सिंगल नेशनलिटी जर्मन ले ली, और उनका कहना अगर आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी लेनी हो तो दोबारा एप्लीकेशन करें तो आप ले सकते हैं डबल नेशनलिटी। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या मशवरा देंगे कि ओरिजिन कार्ड ही ठीक है या कोई फायदा होता है डबल नेशनलिटी का? देखें, ये हर बंदे का अपना जाती फैसला है, तो इसलिए इसमें मैं किसी को क्या राय दे सकता हूँ। आपको जर्मन नेशनल पासपोर्ट होते हुए भी आपको यहाँ पे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आप पीओसी बनवा लें तो आपको वीजे की भी पाकिस्तान जाने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ दोबारा से पाकिस्तान नेशनलिटी लेते हैं तो उसके अंदर फिर ये आपको ये तो वीजा तो पाकिस्तान जाने के लिए आपको नहीं चाहिए होगा उस वक्त भी, लेकिन उसमें यह है कि बाद लोगों की जिनकी जायदादें पाकिस्तान वगैरह के अंदर महफूज है, मतलब है, वो अपने आप को ज्यादा महफूज सब्र करेंगे। अगर यहाँ कोई ऐसी कानून साजी की जाती है उससे फिर वो मुतासर नहीं होंगे, या उस पर कोई ऐसा टैक्स डाला जाता है उससे वो बच सकते हैं डबल नेशनलिटी की वजह से। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसके लिए लोगों को, अगर वो ना भी ले नेशनलिटी, जर्मन नेशनलिटी रखें तो उसमें भी उनको कोई हर्ज नहीं। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। जी नदी, जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे गैर मुल्कियों के लिए जो प्रॉब्लम है, ये लोग देखिए कोई भी चीज़ है, मुझे कल भी कोई कह रहा था कि मज़हब को भी ऐसे हिसाब से अपने को आप लोगों को बताएं कि मुतासर हो लोग। होता ये कोई ट्रेन में खलो के नमाज पढ़ रहा है, लोगों को रोका हुआ है, कोई जहाज में खलो के नमाज पढ़ रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रही है, कोई अल्लाह अकबर के बाहर। अब जर्मन को अल्लाह अकबर के नारे से क्या दिलचस्पी, सीधा सा सवाल है। और ये चीज़ें जो है खुद हमें गौर करना चाहिए कि मसाजिद के अंदर आप ठीक है, उन्होंने इजाज़त दी है, यहाँ की कवानीन उसके मुताबिक चलें, और जिस मुल्क में भी रहें उन लोगों के जज्बात का ख्याल रखें। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके सिस्टम का ख्याल रखें, उनके माशरे का ख्याल रखें, ये बड़ी चीज़ें हैं ज़रूरी। और आप सबको ये भी आखिर में बता देता हूँ, जो सहूलतें यहाँ पे दी गई हैं यूरोप में, कोई भी इस्लामी मुल्क मुझे दिखा दे जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हों। नारे तो वहाँ पे अल्लाह अकबर के सुबह से शाम तक लगते हैं, लेकिन लोगों को खाना इस तरह इज्जत के साथ वहाँ पे नहीं मिलता। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।